नमस्कार दर्शकों, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, विशेषज्ञों की टीम आई थी, 3 सदस्यीय दल आया था। इस बात को लेकर के जम्मू आया था कि जम्मू संभाग में कश्मीर संभाग के मुकाबले में मोर्टेलिटी रेट लगातार बढ़ता जा रहा है और चिंता भी जाहिर की थी। उन्होंने दौरे भी किए, एसोसिएट हॉस्पिटल्स के दौरे किए, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का दौरा किया, कुछ जिला अस्पतालों का दौरा किया और बाद में आज नेशनल हेल्थ मिशन के कार्यालय में मिशन डायरेक्टर चौधरी मोहम्मद यासीन के साथ उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो लब्बो-लबाब था, चाहे चौधरी मोहम्मद यासीन की बात करें जो मिशन डायरेक्टर हैं, उनका भी यही कहना था कि इक्विपमेंट्स की कमी नहीं है, इक्विपमेंट्स बराबर हैं, ऑक्सीजन की कमी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग समय पर नहीं पहुंचते हैं, लोग समय पर सैंपलिंग नहीं करवाते हैं, लोग टेस्टिंग समय पर नहीं करवाते हैं, जिसके चलते लोग घर में उपचार करना बेहतर समझते हैं। जब बिगड़ जाते हैं हालात, तब आनन फानन में अस्पताल में लाया जाता है, तो उस वक्त कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन उन्होंने कहा कि लोगों को भी सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करनी होगी। और जम्मू में on the other hand we have 110% occupancy। तो ये इसका ना एक बड़ा कारण होता है exactly directly everybody knows about load equipment payment. What are the main reasons other than the Indian variant what you have been talking about, reason for the rise in mortality? Because if we compare the figure with Kashmir, we have found that the social distancing has been stretched enough. However, I'll come back to that particular point. Nobody is blaming the dead for having arrived in the hospital late. Nobody is being that insensitive. The point we are trying to make is that there is a problem on that side of the table as well. That people are not getting tested on time, they are not arriving hospital sooner enough. Because there is definite evidence to conclude that had they arrived a bit earlier, the mortality could have been lower. So obviously there is a behavioral problem which we cannot completely neglect. Yes, there will always be some faults as far as critical care infrastructure is concerned, and of course no hospital is that perfect. We don't have that much of international standards care also available, but our doctors are trying our best. The same team visited GMC also. They spoke to the team of intensivists, both consultant medicines as well as consultant anesthetists and all, and they were also convinced that they are handling patients in whatever best manner that they can. It's not as if in Jammu division our doctors are expert doctors are somewhat lacking in something, or that somebody is dying for want of oxygen or for want of ventilators bed. I am sure you would have looked into that data as well, that if any dead body which went out of GMC did their relatives complain that he was kept waiting for ventilator for that long, that he just could not get an oxygen bed for that long and he died without oxygen? No, that's not the case. So there are concerns on both sides, but then with every disease there's a preventive aspect, there's a curative aspect, and we cannot stress enough that yes, the key, the answer, as was the solution to the Spanish flu, lies in the preventive aspect as well. And his observations in the field today, in Sabah today, also is the same, that there needs to be some greater response. दर्शकों, एक्सपर्ट डॉक्टर्स के दल के सदस्यों का ये कहना है कि ज़्यादातर मामलों में ये देखा गया है कि लोग अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं कर रहे हैं, लोग मास्क वेयर नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कहीं ना कहीं वेंटिलेटर बेड्स की कमी है, ज़रूर है, लेकिन साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि लोग अगर समय पर अस्पताल में पहुँचे तो उनका उपचार आसानी से हो सकता है और मोर्टेलिटी रेट भी कम हो सकती है। When I was speaking and VC with the 10 of the districts, if you were there, I'm taking you back to 1800 when that time there were no ventilators, no medicines, no labs, no whole genome sequencing. Even then, in 2 years they were able to contain whole of the Spanish flu with 2 weapons, mask and no crowding. So it lies true even today. We should not brush away. देखिए ये बहुत सिंपल है. Suppose a person comes to you as a doctor, if you give a simple सस्ती वाली दवाई तो वो the patient is not happy, लेकिन उसी से ठीक हो रहा है. But उसके जगह पे psychological effect के लिए we are giving a remdesivir which is costing 30,000. So that mentality we should not
propagate it further. We need to go to the facts. क्या है और what is the reason for the spread? It is not कि बस आप 98% or more than 95% of cases of COVID they are mild. कितने परसेंट cases land होते हैं moderate में? How many are coming to the critical care? No doubt हमारे पास we had a discussion कि हमारे पास critical care beds कम है. That was envisaged because it was a sudden surge, or the government is also trying to cope up with this increasing bed, increasing the critical ventilator beds. सब वो तो कर ही रहे हैं, but the message is it's a two way. आप केसेस बढ़ाते रहे और गवर्नमेंट पर उसको सिर्फ जो कर रहे हैं उनको सिर्फ सपोर्ट करते रहे, दैट इज नॉट. दर्शकों, अब हम आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बुलेटिन से बताते हैं, जो बुलेटिन हर रोज प्रिंसिपल डॉक्टर शशि सूदन करती हैं. 64 नई एडमिशन हुई हैं और 89 लोगों को छोड़ा गया, यानी 89 लोग ठीक होकर के अपने अपने घरों में गए हैं. ये पहली बार, काफ़ी लंबे समय से पहली बार ऐसा हो रहा है कि एडमिशन कम हुई है और लोग ठीक ज़्यादा हुए. और 64 नई एडमिशन हुई थी, 45 पेशेंट्स डिस्चार्ज हुए पिछले 24 घंटे में और 19 डेथ्स हुई. ये काफ़ी बड़ा नंबर है और फिर चिंता का विषय है हमारे लिए. जितने हमारे जनवरी के बाद हमारे जितने पॉजिटिव सैंपल्स आते हैं, एक रूटीन है क्योंकि वायरस है और बार बार हम सुन रहे हैं कि ये बड़ा म्यूटेशन प्रोन वायरस है, वॉचफुल रहने की ज़रूरत है. और हमने क्लिनिकली भी देखा और एपिडेमियोलॉजिकली भी देखा कि पिछले 3 हफ्ते पहले एक रिसर्जेंस हुई जो बहुत स्टीप हमारा और अपवर्ड ट्रेंड था, जिसमें काफ़ी मरीज़ दाखिल होना शुरू हो गए, एडमिशन बहुत बढ़ गई और वो सारे बहुत सिक थे और काफ़ी डेथ्स भी हुई. ये काफ़ी अलार्मिंग ऑब्जर्वेशन थी हमारी. तो अभी कुछ जैसे ही रिपोर्ट्स हमारे को NCDC से मिली हैं, वहाँ जीनोमिक सीक्वेंसिंग जो हमारे जम्मू से गए हुए सैंपल्स की उसके रिज़ल्ट्स आए तो पता चला कि एक नया म्यूटेंट जिसको B1.617.2 ये जो 617.2 म्यूटेंट है, ये हमारी जम्मू डिवीज़न ऑफ UT ऑफ JNK में पाया गया है. दर्शकों, गांधरबल में भी मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन किसी न किसी तरीके से कंट्रोल भी उनको किया जाएगा. डिप्टी कमिश्नर कृतिका ज्योत्सना ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि 197 ऑक्सीजन बेड है, 370 सिलेंडर्स हैं और 40 से ज़्यादा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स हैं. उन्होंने विस्तार से बताया कि क्या क्या व्यवस्थाएं गांधरबल में की गई हैं. आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य है. आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हम आपको कुछ डेटा देना चाहते हैं, उसी के साथ साथ जो हमने कोरोना की दूसरी वेव को झेलते हुए कुछ अचीवमेंट्स इस डिस्ट्रिक्ट ने किए हैं, उसके बारे में भी अवगत कराना चाहते हैं. मैं सबसे पहले गांधरबल की आवाम का धन्यवाद करना चाहूँगी, जिन्होंने बढ़ चढ़ करके प्रशासन की हर पॉसिबल तरीके से मदद की है इस सेकेंड वेव से जूझने में एवं लोगों को सुरक्षित रखने में. इस बार हमारे पास लगभग अभी भी हमारे डिस्ट्रिक्ट में 1000 के ऊपर एक्टिव पॉजिटिव केसेस हैं और लगभग 50 लोग इस वक्त जिला अस्पताल में भर्ती हैं. इसी से हम समझ सकते हैं कि पिछले साल के मुकाबले इस साल की जो सेकेंड वेव है वो कितनी ज़्यादा और डेडली है. पिछले साल हमारे इतने ज़्यादा एक्टिव केसेस नहीं थे और न ही हमारे इतने ज़्यादा हॉस्पिटलाइजेशन के केसेस थे. इसके चलते हमको ये समझना ज़रूरी है कि जो इन्फेक्शन का रेट है वो अब कहीं ज़्यादा गति से बढ़ रहा है और इसीलिए हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाने की. कोरोना से बचने का सबसे एक जो अच्छा उपाय है वो है समय से अपने आप को वैक्सीनेट करवा लेना. मैं इसमें भी आवाम को एक बार बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप सभी लोगों के सहयोग से
1 महीने के अंदर अंदर आज हमने लगभग 97% अपनी 45 इयर्स के अबव की पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर लिया है। दर्शकों, अगर उद्यमियों की बात करें तो उद्यमियों का ये कहना है कि सरकार की तरफ से ताबून मिल रहा है, लॉकडाउन से कोई खास ज़्यादा असर नहीं पड़ रहा है, लेकिन उनका कहना है कि जब दुकानें नहीं खुलेंगी तो उनका प्रोडक्ट बिकेगा कहाँ पर। उनकी प्रोडक्शन तो कंटिन्यू रहेगी, लेकिन प्रोडक्ट्स आगे सेल आउट नहीं होगा। ऐसा जी, लॉकडाउन अभी इन्होंने जो 1 वीक के लिए बढ़ाया है, तो मेरे हिसाब से तो ये अच्छा स्टेप है, ताकि इससे जो वायरस को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी गवर्नमेंट को सपोर्ट मिलेगी। पर अगर हम इंडस्ट्री की बात करते हैं तो इंडस्ट्री में अभी तक क्या है कि क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन हमारी पूरी मदद कर रहा है, तो और उससे क्या है कि हमारी इंडस्ट्री को भी चलने में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आ रही। जितने भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, जो प्रोडक्ट्स यहाँ से बाहर जा रहे हैं, उसका कोई अभी तक कोई ऐसा इशू नहीं आया है, क्योंकि लोकल लेबर भी आ रही है और जो लेबर बाहर की है वो जो फैक्ट्रियों में रहती है वो भी काम कर रहे हैं। पर एक चीज़ है कि अगर ये लॉकडाउन और ज़्यादा बढ़ता है तो इससे क्या होगा कि मार्केट में जो एसेंशियल प्रोडक्ट्स तो बिक रहे हैं, जो नॉन एसेंशियल प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए प्रॉब्लम आ जाएगी उनकी, क्योंकि हमारी स्टेट में जो माइक्रो स्मॉल स्केल सेक्टर है उनकी सारी मार्केट विद इन द स्टेट के अंदर है। तो अगर ये प्रोलॉन्ग होता है तो हमारी स्टेट में क्या है कि उन फैक्ट्रियों को तो जो बंद करना पड़ेगा, और उससे उनमें जो मुलाजिम काम कर रहे हैं उसके लिए जो है गवर्नमेंट को कुछ सोचना पड़ेगा कि उनको कैसे बेनिफिट दिया जाए। ये जो इस समय जो करंट सूरत हाल चल रही है कोरोना लॉकडाउन की, जो नया एक्सटेंड हुआ है 1 हफ्ते के लिए, तो इस पे मैं ये कहूँगा कि अभी तक गवर्नमेंट ने हमारा इंडस्ट्रीज का काफ़ी साथ दिया है, और अभी ऐसा कोई नौबत आई नहीं है कि इंडस्ट्रीज में कोई दिक्कत आई है। जहाँ तक लेबर का सवाल है, वहाँ लेबर का है, एडमिनिस्ट्रेशन का है, जब बाकी चीज़ें हैं वो सब स्मूथली चल रही हैं। अगर ये इसमें एक ही शंका आ रही है, अगर ये लॉकडाउन ऐसे एक्सटेंड होता रहा, मार्केट्स नहीं खुली, तो जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं इस प्रोडक्शन को हमें बाहर निकालना है, दुकानों को भेजना है, दुकानें बंद हैं, तो इतना स्टॉक अंदर इकट्ठा हो जाएगा कि फिर हम इंडस्ट्री शायद थोड़ा थोड़ा रुकना शुरू हो जाए। तो मेरी गवर्नमेंट से यही गुजारिश है कि एटलीस्ट हफ्ते में 2 दिन दुकानों को खोलने की इजाज़त दी जाए, जो नॉन एसेंशियल आइटम्स भी हैं, चाहे 2 घंटे 3 घंटे के लिए ही, क्योंकि हमारा जो जम्मू का लोकल इंडस्ट्री है, स्मॉल एंड माइक्रो, ये टोटली डिपेंडेंट हमारी लोकल मार्केट पे ही डिपेंड है, और मार्केट के बंद होने की वजह से अब जो आने वाले हालात हैं उसमें कुछ शंका पैदा हो रही है कि हमारी इंडस्ट्री भी हर्ट होगी इससे थोड़ी सी। तो मेरी एडमिनिस्ट्रेशन यही अपील है कि चाहे हफ्ते में 2 दिन 3 घंटे के लिए बारी बारी से बाजार में या जैसा भी सेक्टर उठाते हैं वो मार्केट खुलवाएं, ताकि हमारा जो माल है ये भी बाहर जा सके। तो देखिए, हमारी तो जो इंडस्ट्री है वो एसेंशियल आइटम्स की है, तो उसमें तो गवर्नमेंट का काफ़ी सहयोग रहा है कि वो चलता रहे, एंड दे आर आस्किंग अस, कोई दिक्कत तो नहीं है, वी आर गेटिंग कर्फ्यू पासेज, एवरीथिंग एंड एवरी पॉसिबल सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। बट ये है, जिस वक्त लॉकडाउन आपका एक्सटेंड होता है अगर और थोड़ा, तो उसमें जो हमारे नॉन एसेंशियल वाले आइटम्स हैं उनको दे विल बी इम्पैक्टेड वेरी स्ट्रांगली। सो उसमें जो एसोसिएशंस हैं और गवर्नमेंट को बैठ के एक डिस्कशन करनी पड़ेंगी कि इसका इम्पैक्ट कैसे निगेट किया जाए। दर्शकों, हम लॉकडाउन की बात करें तो लॉकडाउन का अगला चरण आज से शुरू हो गया है। आज से सख्ती भी शुरू हो गई है, इसमें कोई दो राय नहीं। मामले थोड़े कम ज़रूर हुए हैं, लेकिन लापरवाही के मामले भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और ऐसा ही कुछ देखने को मिल भी रहा है। अगर हम लोगों की बात करें तो लोगों की मिली जुली राय है। कुछ लोगों का ये मानना है कि जो नई गाइडलाइन तैयार हुई हैं, जिस गाइडलाइन के मुताबिक 2 घंटे समय दिया जाएगा, उस गाइडलाइन का कहना है कि कोई लाभ नहीं है। जब तक व्यापारी अपना सामान नहीं बेच सकता है तो उसको 2 घंटे का समय देने का कोई फ़ायदा नहीं है। उन्होंने कहा कि आहिस्ता आहिस्ता चरणबद्ध तरीके से कुछ दुकानों को खोलने की अनुमति मिलनी चाहिए। तो लॉकडाउन के बगैर कोई चारा नहीं है इस वक्त।
क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में भी पहुँचा है। साल की हम अगर यूपी की स्थिति हम देखेंगे 44 लोग ऐसे हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों से ही जिनकी डेथ हुई है, जिसमें जम्मू मतलब प्राइमरी जम्मू भी इनमें इंक्लूड है और कश्मीर में भी है। तो ये एक ही हालत की हमें जो लॉकडाउन का उसका पालन भी करना है, उसके जो भी SOP है वो करनी पड़ेगी, उसके अंदर कोई चारा नहीं है। तो हम यही चाहते हैं कि लोग जितना भी घर में बैठे और इसी से वो स्वस्थ भी रहें, ठीक रहे, ताकि ये चोन जो इसकी जो बीमारी है, खतरनाक बीमारी है, अब खुद ही हम देख रहे हैं कि अब जो आज कया सारा चल रहा है, आपकी तीसरी लहर आ रही है, उसके लिए तैयारी करें। गवर्नमेंट बहुत इस वक्त बहुत ही खुद भी मतलब इस हिसाब में है कि आज ही बोला गया है कि 20,000 बेड ग्रामीण क्षेत्रों के लिए तैयार कर दी गई है, क्योंकि हालात लगता है कि हालात शायद ठीक नहीं है। इसके बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि लॉकडाउन होने से काफ़ी नंबर ऑफ़ केसेस में कमी आई है। पहले जैसे 4 लाख से भी ऊपर पहुँच गए थे ऑल ओवर इंडिया, वो कम हुए हैं। जम्मू कश्मीर में भी थोड़ा सा इसका नंबर जो है कम हुआ है। तो लॉकडाउन का फ़ायदा हो रहा है लोगों को, लोगों की सेहत के लिए बहुत अच्छा है कि जल्दी से जल्दी ये जो कोरोना की लहर छाई हुई है ये कम हो जाए। दर्शकों, भद्रवाह के भी लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं व्यवस्था ऐसी की जानी चाहिए। लॉकडाउन ठीक है, लॉकडाउन इस चेन को तोड़ने के लिए बड़ा लाजमी है, लेकिन साथ साथ जिनका कारोबार, जिनका बिजनेस पूरी तरह से बैंक या CC लिमिट्स पर टिका हुआ है, वो अपना कारोबार कैसे चलाएंगे, सरकार को इस बाबत भी सोचना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि आज की जो 90% दुकानदारी है वो टोटल बैंक लोन CC पे चल रही है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि 3 साल से हम जुलझ रहे हैं इस JK में। पहले तो यहाँ पे अच्छे माहौल थे, 370 टूटने के बाद यहाँ पे शटर डाउन करा दिए गए। जब थोड़ा सी सहमति आ गई, जब थोड़ा सा माहौल अच्छा हो गया, उसके बाद कोरोना फर्स्ट वेव आ गई। जब कोरोना आ गया तो गवर्नमेंट ने फिर शटर बंद करा दिए। जब शटर बंद हो गए तो आपको पता है हमारी बैंक्स की EMI सब रुक गई। उसके बाद जब वो रुक गई तो हमें कहा गया कि आपको EMI नहीं पे करनी है। जब थोड़ा टाइम हो गया, जब हालात ठीक हो गए, तो दुकानदारों पे एकदम से प्रेशर आ गया कि अपना सारा EMI पे कर दीजिए। जब हमने वो पे किया, हमारा इंटरेस्ट काफ़ी हो चुका था। अब जब फिर हालात थोड़े ट्रैक पे आ गए थे, अब फिर से दुकानदारों को महामारी का ये जो है असर जूझना पड़ा। अब इसके लिहाज से दुकानदार जो है बिल्कुल पिछड़ चुका है। देखिए, जहाँ तक लॉकडाउन की बात नासिर साहब आपने की, लॉकडाउन जो है बहरहाल एक अच्छा इनिशिएटिव है, हमें इसको अप्रिशिएट करना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। अगर हम आज के वक्त में लॉकडाउन नहीं यहाँ पर लगेगा, लोग SOPs को फॉलो नहीं करेगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक जो इस वक्त जो कोविड का जो एटमॉस्फेयर बना हुआ है, इससे जो है लोगों को बाहर निकलने में, ठीक है ना। लेकिन फिर एक चीज़ होती है कि जब आप कोई ऐसा इकदाम उठाते हो जिसमें कहीं ना कहीं लोगों को थोड़ा महसूर किया जाता है, लोगों को कहीं पर कन्फाइंड किया जाता है, तो दूसरी तरफ से उसकी एक रेमेडी भी तैयार होती है। तो वो रेमेडी जो है ना, वो हमें यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन के एंड से देखने को नहीं मिल रही है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के एंड पे। ठीक है, लॉकडाउन आपने लगाया, आप एक मज़दूर को लॉकडाउन लगाएंगे, ठीक है ना, लेकिन उस मज़दूर तबके को उस लॉकडाउन के ज़ुमरे में लाएंगे, आप ट्रांसपोर्टर को उसके ज़ुमरे में लाएंगे, आप किसी कोई गरीब आदमी जो है, बेसिकली गरीब आदमी ही सफ़र होता है, कोई घोड़े वाला है, कोई आपका किसी ने डेयरी फार्म में उसमें लोन उठाया है, किसी ने और स्कीम में लोन उठाया है, कोई ट्रांसपोर्टर है जो मज़दूर तबका, ये तो पूरी तरह से सफ़र हो रहा है। इनके लिए कोई इकदाम नहीं, इनके लिए कोई रेमेडी नहीं है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि भद्रवाह जो बिज़नेस के लिहाज से है बहुत पिछड़ा हुआ है। आपको मालूम होगा कि हमारा भद्रवाह जो इलाका है सबसे पीछे आता है, इसके ना पीछे कोई इलाका है ना कोई आगे ऐसा कोई मतलब इलाका है जहाँ बिज़नेस चल पड़े हमारा। लेकिन थोड़ा बहुत जो बिज़नेस था दुकानदार भाइयों का, मैं भी एक दुकानदारी हूँ, बिज़नेसमैन हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ जितनी तबाही हमें 2 सालों से हुई है, इतनी तबाही हमने पूरी ज़िंदगी में नहीं देखी। यहाँ का दुकानदार तबका जो बेचारा है
उन्होंने बैंक से लोन लिए हैं, लिमिटें ली हैं, तबाह बर्बाद हो चुके हैं, वो उन पे इंटरेस्ट चढ़ गया है, उनको नोटिसें आ चुकी हैं, लेकिन करेंगे क्या। मैं मानता हूं कि लॉकडाउन हमारे लोगों के लिए लगाया गया, हम लोगों के लिए, आवाम के लिए लगाया गया है, बचाने के लिए। लेकिन मैं गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूं, उन्होंने दुकानदारों के बारे में भी कुछ सोचा है कि नहीं, क्योंकि आपको पता है मुलाजिम तबका जो है उनको तनख्वाह मिल रही है, आज मज़दूर भी थोड़ा बहुत काम कर रहा है, उनको दिहाड़ी मिल रही है, लेकिन जो यहाँ का दुकानदार है, यहाँ सारे दुकानदार जो मीडियम क्लास के, मैं नहीं बोलूँगा कि हाई फाई बिजनेस है, अरबापति है, करोड़ापति दुकानदार हैं, करोड़ों में उनकी ट्रांजैक्शन है, ऐसा नहीं। यहाँ सारे दुकानदार जो है मीडियम तबके में हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो मेरी अपील रहेगी कि उनके बारे में सोचा जाए। दर्शकों, कल उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का दौरा किया था। उसके बाद डॉक्टर्स की टीम आई थी, उन्होंने भी मेडिकल कॉलेज का दौरा किया, और आज डिविजनल कमिश्नर डॉक्टर राघव लंगर ने भी मेडिकल कॉलेज का दौरा किया, क्योंकि लगातार मामले बढ़ रहे हैं, कुछ शिकायतें भी आ रही हैं। इन शिकायतों के निपटारे के लिए, और दूसरा ये है कि जो प्रबंधन है मेडिकल कॉलेज का, उनका हौसला अफजाई करने के लिए बड़े आला अधिकारी चक्कर लगाते हैं। आज डॉक्टर राघव लंगर ने जो निर्माण कार्य चल रहा था इमरजेंसी का, वहाँ का जायज़ा लिया, अधिकारियों से बातचीत की और जो ज़रूरी निर्देश थे उनको दिए। दर्शकों, जम्मू नगर निगम ने भी कमर कस ली है। जहां पर क्राउड होता है, जैसे मंडी की बात करते हैं, सब्जी मंडी की बात करते हैं, फ्रूट मंडी की बात करते हैं, वेयर हाउस अनाज मंडी की बात करते हैं, यहाँ पर क्राउडेड होता है, वहाँ पर वो सैनिटाइजेशन कर रहे हैं। आज वेयर हाउस में एक अभियान चलाया गया जिसमें चंद्र मोहन गुप्ता जो मेयर हैं, उसके साथ साथ जो वेयर हाउस के प्रेसिडेंट हैं, जो पदाधिकारी हैं जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के, वो वहाँ पर पहुँचे और वहाँ पर सैनिटेशन के प्रोसेस को शुरू किया और उनका आभार व्यक्त किया है। कहीं ना कहीं वेयर हाउस के व्यापारियों ने आभार व्यक्त किया और साथ ही साथ चंद्रमोहन जो मेयर हैं उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जम्मू नगर निगम पूरी तरह से कमर कसे हुए है, किसी भी स्थिति से निपटने के लिए नगर निगम तैयार है। जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन सैनिटाइजर का काम हो, सफाई का काम हो, फॉगिंग का काम हो, तीनों काम हम बड़े युद्ध स्तर पर हम जम्मू शहर के अंदर और जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के क्षेत्र में कर रहे हैं। आज वेयर हाउस में द्वारा हम इस काम को स्टार्ट किया है। यहाँ मेरे साथ ऑनरेबल हमारे चेयरमैन हेल्थ एंड सैनिटेशन नरेंद्र सिंह जमाल जी, हमारे हेल्थ ऑफिसर, हमारे SO राजेंद्र जी और सारी टीम जहाँ लगी हुई है। इसी तरह हम हर वार्ड के अंदर और जहाँ जहाँ हमारे मंडियाँ हैं, कणक मंडी है, वेयर हाउस है, चाहे हमारा फ्रूट मंडी, सब्जी मंडी या और कोई बाज़ार है, अफसरा रोड है, सब जहाँ जहाँ लोगों का जाना जाना ज़्यादा है, वहाँ हम ज़्यादा कर रहे हैं। दफ्तरों में, डिपार्टमेंटों में, जहाँ से हमें पॉजिटिव केस निकल रहे हैं, क्लिनिकल ग्राउंडों में जहाँ हम लास्ट साइड करते हैं, वहाँ पर उन सबको आने वाले समय में और भी इसको और तेज़ी लाएंगे। जहाँ जहाँ कमी होगी, जम्मू वासियों की सेवा करने के लिए जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हमेशा ही तत्पर है, चाहे वो सफाई का काम हो, चाहे सैनिटाइजिंग का काम हो, फूडिंग का काम हो या डेवलपमेंट का काम हो। आज से यहाँ से फिर एक युद्ध स्तर पर हमने इस काम को शुरू किया है। आने वाले समय में और भी कोई कमी न रहने देंगे। हमारे सफाई साथी से लेकर कमिश्नर तक
हम सब 75 कॉर्पोरेटर ऑनरेबल सब मिलकर इस काम को कर रहे हैं। जिस तरह से आज जीएमसी कमिश्नर साहब, मेयर साहब आए हैं और हमारे चेयरमैन साहब आए हैं और चंद्रमोहन जी और मेरे ऑफिस में और सारी जीएमसी की टीम आई है। बड़ी खुशी है कि जिस तरह से वॉलंटरी हमारी फेडरेशन काम कर रही है और एडमिनिस्ट्रेशन भी हमारे साथ खड़ी है। हमारा वेयर हाउस का एरिया जो काफ़ी क्राउड रहता है और 22 डिस्ट्रिक्ट के व्यापारियों का आना जाना है, तो काफ़ी क्राउड एरिया है। मैं आपके माध्यम से जीएमसी मेयर को और उनकी टीम को धन्यवाद देता हूँ। वो खुद ही यहाँ पे मौजूद है और सैनिटाइज हो रही है हमारी मार्केट, ताकि हम दोबारा तैयार हो एसेंशियल सप्लाई करने के लिए, और जो कट ऑफ है एसेंशियल सप्लाई का वो ना होने दें। दर्शकों, कोविड-19 के चलते कहीं ना कहीं किसानों को भी नुकसान हो रहा है और साथ साथ ट्रांसपोर्टर्स भी इसका सीधा शिकार हो रहे हैं। ट्रांसपोर्टर्स को पहले भी पिछले साल 2020 में जब वेव 1 थी तब भी नुकसान हुआ था और उसके बाद अब वेव 2 में भी नुकसान हो रहा है। लॉकडाउन लगने के कारण जो है गाड़ियां सड़कों पर नहीं आ पा रही हैं, हड़ताल की पहले ही कॉल दी हुई है उन्होंने, तो कहीं ना कहीं लगातार डेप्रिसिएशन का खतरा बना हुआ है और जो ट्रांसपोर्टर है अपने आप को ठगा हुआ, असहाय महसूस कर रहा है। मैं गवर्नमेंट से, एलजी साहब से यही रिक्वेस्ट करता हूँ, अपील करता हूँ कि गवर्नर साहब हमारी ट्रांसपोर्टरों की जो हालत है इसको मद्देनज़र रखते हुए इनकी हालत को देखिए। ड्राइवर कनेक्टर जो हमारे हैं इस टाइम भूखे मर रहे हैं। मेरे मालिक जो हैं उनकी पोजीशन बहुत खस्ता हो चुकी है, क्योंकि टैक्स जो है दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। हमारे इंश्योरेंस जो हैं वो गाड़ियों की खड़ी गाड़ियों की ख़त्म हो रही हैं और ख़त्म हुई हैं। 2-2 साल हमें इंश्योरेंस ही बल्कि खड़ी गाड़ियों की करानी पड़ गई थी। उसके बाद हमारे टैक्स जो हैं वो बढ़े हुए हैं। मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि 5 स्टेटों की इलेक्शन थी तो उस टाइम बिल्कुल इन्होंने तेल और डीजल का रेट नहीं बढ़ाया था, और जैसे ही इलेक्शन ख़त्म हुई तो आज देखिए रोज़ अखबारों में आ रहा है 25 पैसे, 30 पैसे, 40 पैसे जो डीजल है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो आने वाले टाइम में हमारी गाड़ी बिल्कुल ही चलने के लायक नहीं रह जाएगी जितनी देर में हमारे ट्रांसपोर्टरों को, जैसे कि बाकी लोगों को थोड़ा बहुत कोई राहत देते हैं, जैसे ऑक्सीजन दे रहे हैं ये, तो हमारे भी ट्रांसपोर्टरों को थोड़ी ऑक्सीजन दी जाए ताकि ये भी ज़िंदा रह सकें। और मैं धन्यवाद करता हूँ मीडिया का। और आज आप देख लीजिए हमारी जो ट्रांसपोर्टरों की हालत है। 1 महीना पहले हमारी आपको, जैसे कि आप जानते हैं कि एलजी साहब ने एक ऑर्डर निकाला था जिसमें 50% सीटिंग कैपेसिटी के हिसाब से गाड़ियां चलानी। तो बड़ी बदकिस्मती की बात है, तब भी जब ऑर्डर निकला हमें बुलाया नहीं गया और उसके बाद हमारी तकरीबन 10 दिन हमारी गाड़ियां बंद रही, और बंद रहने के बाद ही दूसरे दिन ये लॉकडाउन सरकार ने कर दिया। तो जब हमारी ये 50% सीटिंग कैपेसिटी की थी सरकार ने, तो उसी टाइम ट्रांसपोर्टर जितने भी हमारे ग्रुप्स हैं हम समझ गए थे कि सरकार ने एक तरफ से एक किस्म का ये लॉकडाउन ही लगाया है। लेकिन 10 दिन बंद होने के बावजूद भी सरकार के साथ हमारी मीटिंग नहीं हुई, और उसके बाद आज देखिए आप 1 महीना हो चुका है और ट्रांसपोर्टरों की अभी तक सरकार ने सुध नहीं ली, जिसमें आप देखिए हमारे ड्राइवर और कंडक्टर इतनी बुरी हालात से वो गुजर रहे हैं बेचारे। उनके पास काम काज कोई नहीं है, और सरकार ने हमारे साथ बड़े बड़े वादे किए थे कि हम पैकेज देंगे। आपने देखा दिल्ली सरकार ने अभी कुछ दिन पहले 5-5 हज़ार या फिर उन्होंने ड्राइवर और ऑटो चालकों को उन्होंने दिया। लेकिन हमारे यहाँ सरकार मुझे लगता है सो गई है। हमारे ड्राइवर इतनी बुरे हालात में हैं, ट्रांसपोर्टर इतने बुरे हालात में हैं, जो गाड़ी का मालिक है उसकी अपनी परेशानी है कि वो किस्त दे, वो घर का चूल्हा कैसे चलाएगा। तो आज हमारी फिर हम सरकार से मांग करते हैं कम से कम जागिए नींद से, और हमारी जो ट्रांसपोर्ट है पूरा सिस्टम बंद पड़ा हुआ है।
तो दर्शकों बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत।